Okay. Now the recording is on. So tell me that what are your, why have you selected this subject as your minor? Anyone? Anji, anyone? What is your motivation to choose this subject? Are you people planning for MS, research paper, project, or maybe becoming ML engineer? So what is your target? Anyone? It would be good if you can participate. Atul? Yes, sir. हाँ जी बताओ ये सब्जेक्ट क्यों चूज करा? General aim was to explore the field, not Okay. very elaborative, but the overview is to explore the field. Okay. You want to explore the field. Anyone else? Any other reason? I would love to hear it. You must have done your research a bit. You must have seen that what this subject is capable of. That's why you have selected this machine learning. ऐसा तो नहीं है ना किसी ने धक्के से दिलाया ये सब्जेक्ट? Have you people studied anything related to this subject in your course till now? You people are from electronics, right? Yes, sir. And some of you are from other branch also. I can see the roll number series. So 5037, is it electronics only? 50 series? Yes, sir, electronics. And what about 40 series? I can see 40 series also. 54011. Harshit Garg, which branch are you from? Electrical, sir. Electrical. Okay. So electrical and electronics. You people are from these two branches. Okay. Hanji, batao. I want to hear from you people that what are your what we say, what you know about this subject already. What is your motivation? You want to learn this subject? Why? Maybe because of the hype. Machine learning, deep learning बहुत हो रहा है market में. Is that the reason? Anyone? देखो ऐसा है, machine learning अपने आप में it is a very big branch, and I will show you the syllabus also. We will come to that. But before that, I want to give you a bit of things about me also. For those who have joined late, I have done a PhD in computer vision. My main field is in computer vision, and I have many research papers, more than 10 research papers in my field. And I like to explore this field and continually working on my topic. I have been in this field from 5-6 years now. If you people have any doubt or maybe you want some guidance, I'm open to that also. I will give you my email ID. And so I have made this website in advance for you so that you people can go through these things. At least जितना कर सकते हो उतना कर लो, because tomorrow is our first lab. कल पहली लैब है, उससे पहले पहले I want you people to go through this, at least this Google Colab वाली वीडियो. ठीक है, फ्रॉम वेबसाइट आप इजीली इसको असेस कर सकते हो. एंड ओवर टाइम आप ये वाले ऊपर के दोनों वेबसाइट भी देख, मतलब ये दोनों वीडियो भी देख सकते हो. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू learn some mathematics for machine learning, which will include probability, calculus, थोड़ा सा, ज़्यादा हाई फाई नहीं. डरने की जरूरत नहीं है. अगर किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, स्टिल इट इज डूएबल. बेसिक सा चाहिए होता है. एंड पाइथन फॉर डाटा साइंस मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इफ यू नो द बेसिक पाइथन, इट इज इजी फॉर यू टू हैंडल द डेटा सेट्स. क्योंकि मशीन लर्निंग में डेटा सेट पे ही तो काम करना है. कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्सेल शीट में डाटा आएगा, या फिर आपको इमेजेस के फॉर्म में डाटा आएगा, या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, तो आपको सेंटीमेंट एनालिसिस पे करना है या कुछ भी करना है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू कैन हैंडल द डाटा. ठीक है. एंड आई हैव मेड दिस वेबसाइट इन एडवांस. आप यहाँ पे ऑलरेडी एक सिलेबस वाला टैब है, इसमें जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा. सो इसको आप अपने मोबाइल पे भी बाद में चेक कर सकते हो. बट लेट्स बिगिन
from the presentation point of view, I have made a presentation also to discuss the subject. I have put this short link on this front page that you can reach the website from this link by typing this small thing bit.ly/mlcs minus. बहुत आसान है याद रखना. So on the left hand side of your screen, you can see that there is this diagram showing artificial intelligence, machine learning, and deep learning as a Venn diagram. Anyone having any idea about these three fields? कुछ भी पता है तो बोल सकते हो. I want to hear from you people. It will be good if you participate. At least मुझे पता होगा कि मैं किस लेवल पे जाके काम करवाऊँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा लेके जा सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से बता सकता हूँ. इफ़ यू वांट टू डिस्कस ए कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वो भी हो सकता है, बट प्रायोरिटी हमेशा हमारा सिलेबस रहेगा. आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस. प्रायोरिटी हम उस पर रखेंगे. अदरवाइज इफ द टाइम अलाउज मे बी 2-4 मिनट हम ये वाला डिस्कशन कर सकते हैं. In 2 minutes, I will be starting the theory part of this subject, but I want to hear from you people. Has anyone working in this field? किसी की टीम बनी हो, किसी ने deep learning पे वैसे काम किया हो या machine learning पे? Anyone, any idea on ML and DL? What is the difference? Can anyone tell? Machine learning और deep learning में difference किसी को पता हो तो? Harshit Garg, can you tell me that what is the difference between machine learning and deep learning? थोड़ा आइडिया हो आपको तो बताओ. Sir, I have no idea regarding this. No idea. Okay. Anyone having some idea? Don't shy. Yes, deep learning is part of machine learning that we can see in the Venn diagram. But I am asking, अगर किसी को कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में पता हो, कुछ डिफरेंस को समझा सके, इट विल बी गुड फॉर एवरीवन. ओके, सो देखते हैं क्या डिफरेंस है. बट मेनली आई विल ओनली से राइट नाउ, अगर किसी को सच में जानना है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ खास नहीं है. मशीन लर्निंग में बहुत सारे मॉडल्स हैं. देयर आर मेनी मशीन लर्निंग मॉडल्स. मशीन लर्निंग को सिंप्लीफाइड वे में इतना कह सकता हूँ कि जो भी हमारे पास डाटा गिवन होगा, वी हैव टू फिट ए लाइन. कोई भी एक स्टैटिस्टिकल कर्व फिट करना होगा. इट मे बी स्ट्रेट लाइन, इट मे बी नॉन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कर्व हो सकता है और किसी भी डिग्री तक का कर्व हो सकता है. मे बी 10 टू द पावर, मतलब x टू द पावर 13, x टू द पावर 15, मे बी x स्क्वायर. तो पॉलिनोमियल किसी भी लेवल का हो सकता है. तो वो इक्वेशन कितने भी कर्वी हो सकती है. ठीक है, तो उसमें उन वाले मशीन लर्निंग कर्व्स में अलग अलग मॉडल्स डिफाइंड है. एंड आउट ऑफ दोज one of the model is called neural networks. So neural networks is part of machine learning models only. बहुत सारे models हैं. I will give you some examples that we will learn also in the coming days. सुना होगा आपने decision trees, random forest, XGBoost, linear regression, logistic regression. There are other models also, but these are kind of very famous ones. And ऐसे ही one of the model is neural networks. अब neural networks को ही अगर हम variety of types में देखने लग जाएं तो उसको हम डीप लर्निंग बोल देते हैं. ठीक है, वी विल कम टू इट लेटर ऑन. सो लेट्स बिगिन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज you are seeing on screen? What is the meaning of this image? Can anyone tell? On the left hand side, small robot is saying that I got fired from my work today. They replaced me with a human. But on the right hand side, the looking smart robot is saying, oh really, what happened? Can anyone guess what happened? Anyone? Any thoughts? शायद रोबोट का एआई पुराना हो गया होगा तभी रिप्लेस कर दिया. लेकिन ह्यूमन से क्यों रिप्लेस करेंगे उसे, न्यू रोबोट से रिप्लेस करेंगे ना. yes, that's what is being shown in this image. अगर आप ध्यान से देखो साफ पता चल रहा है that right वाला जो बड़े वाला रोबोट है, it is more smarter, it has more features, right? It looks more detailed. उसकी सिर्फ आंखें देखने से पता चल रहा है कि उसकी आंखों में ज्यादा फीचर्स हैं, उसका माउथ ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है. क्लियरली पता चल रहा है कि ज्यादा अच्छे से डिजाइन करा गया है राइट वाले रोबोट को. तो इनफैक्ट उसने ही
छोटे वाले रोबोट का जॉब लिया है एंड दैट स्मॉल रोबोट इज थिंकिंग दैट ह्यूमन हैज रिप्लेस्ड हिज जॉब बिकॉज इट वाज परफॉर्मिंग बेटर, द ओपोनेंट वाज परफॉर्मिंग बेटर। ठीक है, तो वो अपने ही कंपटीशन से बात कर रहा है। it was quite interesting, I thought to put this in the presentation. So moving ahead, so agenda for today's lecture is we will try to cover all of these, but अगर नहीं होता तो we will continue in the tomorrow's lecture also. कल तो lab है, but I will try to focus, most of the things are very basic, so let's begin. So syllabus की बात कर लेते हैं. Your subject code is UML 501, which I have received in my timetable. So I have taken this screenshot of the syllabus and I have put this on the website also. तो आप वहाँ से भी एक बार डिटेल में देख लेना. You will find books also, the names of the books and the course objectives, everything are there within that syllabus PDF. There are credits, 4 credits का है, 1 lab and 3 lectures. I am sure you have got the timetable. तो जो topics हैं, let's begin. So introduction में we will be discussing about the well-posed learning problems, basic concepts, designing learning system and then issues, types. तो ये सब होगा and I will be discussing these things in detail, supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. आपके लिए ये new keywords हो सकते हैं, but don't worry, there are thousands of videos available on YouTube and I will also try to give you more correct way, मतलब अपने time में I will try to give you the best. But if you want to explore more, I will give you the resources also on the website, on the course website. And then the data preprocessing is there. जो introduction का part है, it is 3 or 4 lectures at max, maybe 3 lectures only. But data preprocessing थोड़ा लंबा जाएगा. Data preprocessing में करना क्या है? Now you have to work on a data set. Machine learning का मतलब है that we have to do a job जो कि humans कर सकते हैं, but humans take time, so we want to automate it. बोरिंग वाला काम थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए वी कैन ऑटोमेट इट एंड मे बी टाइम सेविंग हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यू मस्ट बी नोइंग दैट जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हो तो वहाँ पे फेस टैग का ऑप्शन बहुत इजीली कई सालों से आ रहा है. इफ यू हैव मोबाइल फोन्स, ड्यूरिंग जब आप अपना फेस कैमरा के आगे करते हो, यू कैन सी दैट some of the phones also predict the gender as well as the age of the person. एक एज ब्रैकेट वो बता देते हैं कि आपकी एज 25 से 30 में है या 20 से 25 में है. There are different features of the cameras depending upon different devices. And also you can see on Instagram, जब भी आप कोई फोटो अपलोड करते हो तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक कुछ टैग्स आ जाते हैं that if you're typing some tag, then you can also add some automatic tags also that they're recommending. So it is based on recommendation system. तो Instagram ने क्या करा हुआ है या YouTube ने क्या करा हुआ है, whenever you put something online, they give you some automatic tags. And वो कैसे देता है? It recognizes the content and based on nearest thing के जो उससे मिलता जुलता पहले कुछ किसी ने अपलोड किया था, उन्होंने क्या डाले थे, तो उसकी हिस्ट्री में पहले से सेव्ड है, उन्होंने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करा हुआ है, और मे बी डीप लर्निंग मॉडल, whatever they have trained, based on that model they are giving some recommendation. तो वो रिकमेंडेशन का पार्ट है. बट कोई भी काम हो रहा है, वी नीड टू हैंडल द डाटा प्रॉपरली. थोड़ा सा एक बेसिक सा हमें उस डाटा को थोड़ा सा कट पेस्ट करना पड़ सकता है. मतलब हो सकता है कि वो डाटा बहुत नॉइजी था, उसके नॉइज हटा रहे हैं. नॉइज का मतलब लेट्स से अब ये तो बहुत क्लीन इमेज आपको दिख रही है, आपके सामने डाटा बहुत क्लीनली दिया हुआ है. लेट्स से कि यहाँ पे अननेसेसरी फुल स्टॉप्स बहुत सारे डॉट 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 डाले होते हैं, जैसे हम चैट में लिख देते हैं, है ना, या फिर कुछ मे बी सम इमोजीज होते, तो हमें इमोजीज रिमूव करने हैं. बिकॉज इमोजीज से इफ यू आर डीलिंग विद इमेज डाटा, फिर तो ठीक है कि इमोजी से वी कैन प्रेडिक्ट द इमोशन ऑफ द पर्सन, ठीक है. बट इफ वी आर वर्किंग प्योरली ऑन टेक्सचुअल डाटा, फिर इमोजी का कोई काम नहीं है उसमें, ठीक है. इमोजी इज एन इमेज, तो इमोजी को हमें हटाना पड़ेगा. तो वहां पे फॉर ए टेक्सचुअल डाटा इमोजी इज ए नॉइज. तो इट डिपेंड्स आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. तो उसके लिए हमें कुछ डाटा प्रीप्रोसेसिंग करना पड़ता है. डाटा प्रीप्रोसेसिंग में हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ डाटा प्रीप्रोसेसिंग, उसके मेथड्स क्या हैं, उसमें क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब का मतलब क्या है. अभी के लिए सिर्फ ये आपके लिए कीवर्ड है, बट आई विल टेक केयर कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. Then the classification, it is the biggest unit. It will be around 10 lectures in classification itself. Classification में बहुत सारे मॉडल्स हमें कवर करने हैं. सबसे पहले तो हम नीड एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन करना क्यों है,
Can anyone give me an example of classification problem? Can anyone give me any example? कुछ भी मन में आ रहा हो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? I want to give you a basic idea अगर किसी को नहीं पता तो. If you have anything in mind, you can speak. What is classification? Anyone? No one? क्लासिफिकेशन सिंपल है यार. मतलब लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल है. आपके सामने फोन पड़ा है अभी साइड पे. अगर आपके साइड पे फोन पड़ा और उसमें कोई व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज कर रहा है, इट इज योर चॉइस टू पिक द फोन एंड लुक इनटू द मैसेज और नॉट, है ना? यस और नो. एक ब्रेन में डिसीजन मेकिंग हो रही है. तो क्लासीफाई हो रहा है ना, ब्रेन में क्लासीफाई कर रहे हैं हम ऑन ए थॉट लेवल दैट आई हैव टू पिक द फोन और नॉट. फिर चाहे आपको कॉल आ रही है, फिर चाहे आपको मैसेज आ रहा है. इट इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. इवन अगर मेरे को प्यास लग रही है, इफ आई वांट टू डिले कि मैं पानी पीना चाहूँ या नहीं, तो इट इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. यस और नो, बाइनरी प्रॉब्लम कि मुझे पानी पीना है बॉटल से या नहीं पीना, राइट? सो देयर आर डिसीजन मेकिंग जिसमें हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट? अब इसमें एक छोटा सा और एग्जांपल दे सकता हूँ. लेट्स से ये थापर का लेक्चर ना हो कि कोई कंपनी का लेक्चर होता और आपको एंड में फीडबैक देने के लिए वहां पे रेटिंग देनी होती फॉर दिस लेक्चर. तो वहां पे आप 1 to 5 रेटिंग देते, स्टार, है ना? जैसे हम प्रोडक्ट की भी रिव्यू करते हैं ऑन अमेजोन. अगर आपने कुछ मंगवाया है तो वो रेटिंग जो 1 to 5 रेटिंग है वो भी क्लासिफिकेशन है कि वो 3 स्टार का है या 5 स्टार का कंटेंट है या 4 स्टार है. तो दैट इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन का मतलब है यू आर गिविंग सम क्लास, रेटिंग दे रहे हो आप, उसकी क्लास दे रहे हो, है ना? उसको कुछ डिफाइन कर रहे हो उसके या तो 0-1 फॉर्म में, इट मीन्स बाइनरी प्रॉब्लम. अगर 2 से ज्यादा है तो इट इज मल्टी क्लास प्रॉब्लम. मे बी 3 और मोर इज मल्टी क्लास प्रॉब्लम. 2 क्लासेस इज बाइनरी प्रॉब्लम. ठीक है? तो क्लासीफाई करना किसी भी चीज को उस कैटेगरी में, कैटेगराइज करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे. इट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इट इज वन ऑफ द बाइनरी क्लास मेथड. तो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये वाला होता है. 1 सेकंड, या दिस वन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बाइनरी. जनरली वो बाइनरी के लिए काम आता है, 2 क्लास प्रॉब्लम के लिए. बाकी जो डिसीजन ट्री है और मे बी द ट्री इंडेक्शन एल्गोरिथम, स्प्लिट एल्गोरिथम्स हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरी, गिनी इंडेक्स, and 1 or 2 other variations are also there, and then random forest. ठीक है? अब ये अपने आप में एक एक मॉडल है. ठीक है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द फर्स्ट मॉडल, डिसीजन ट्री सेकंड मॉडल, then split algorithm based on information theory third model, based on Gini index fourth model, random forest fifth model, Naive 6, KNN 7, support vector machine 8. तो 8 मॉडल्स तो हमें डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने हैं. तो 8 लेक्चर तो सीधा सीधा लेके चलो. आई विल बी टीचिंग दीज 8 मॉडल्स इन 8 डिफरेंट लेक्चर्स. ठीक है? हो सकता है कि अब जैसे एसवीएम है, एसवीएम में 2 तरह के होते हैं, हार्ड एसवीएम एंड सॉफ्ट एसवीएम. तो इनके हो सकता है 2 लेक्चर में काम हो. बट आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू. I will teach you in detail. Mathematically also you have to work on the things. There might be some derivations also. You have to go through that also. ठीक है? तो मतलब डरना नहीं है. अगर किसी का मैथ्स वीक भी है तो भी विद प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना टफ नहीं है. आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाइड. नाउ अब क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आई वांट टू डिजाइन ए फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम. एक सपोज मुझे एक अटेंडेंस लेनी है. अगर सपोज फिजिकल क्लास में होते हम, तो आई कैन टेक योर अटेंडेंस डूइंग दिस थिंग दैट एक फोटो खींचा क्लासरूम में. जैसे मैं पोडियम पे खड़ा हूँ तो सामने फोटो खींचा तो बहुत सारे जने बैठे हो. ठीक है? तो ऐसे करके लेट्स से आप 9 स्टूडेंट्स हो या 20 हो, जितने भी हो. तो मैंने एक बार में यहाँ फ्रंट साइड से यहाँ से एक फोटो खींच लिया. ठीक है? ऐसे करके पूरा वाइड व्यू एंगल आ गया और फोटो आ गई, सबके फ्रंट फेसेस आ गए. नाउ फ्रंट फेसेस में मुझे काउंट करना है पहली बात कि कितने जने हैं, हेड काउंट कितना है. तो दैट इज ए फेस डिटेक्शन प्रॉब्लम. तो अगर मैं फेस डिटेक्ट करने जाऊंगा उस इमेज में, उसमें मल्टी फेस डिटेक्ट होंगे. ठीक है? इस लेट्स से दैट ऑल दीज जीरोस आर 9 फेसेस इन द इमेज. तो मेरे पास अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, आई वुड से 9. द आउटपुट शुड बी 9 स्टूडेंट्स. ठीक है? एंड इफ आई वांट टू से दैट प्रिंट ऑल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर देयर, तो मुझे हर फेस को रिकॉग्नाइज करना है. सो इट इज ए फेस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है? अब हो सकता है कि मेरे पास डेटाबेस बना हो
मैंने आप लोगों की एक एक फोटो ली, अपना मॉडल ट्रेन कर लिया, कोई भी इनमें से उठा लो, लेट्स से मैंने SVM मॉडल लिया और उसको ट्रेन कर लिया दैट if a new image comes, I will use the SVM model and SVM model will give me what is the roll number of the person 1 to 20 तक, let's say 20 people are there. तो वो जो नंबरिंग है, वो जो रोल नंबर प्रेडिक्शन है, दैट इज कॉल्ड फेस क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करी हैं. एक तो मैंने डिस्कस किया फेस डिटेक्शन. फेस डिटेक्शन का मतलब है कि मुझे सिर्फ डिटेक्ट करना है कि कितने बंदे हैं. ठीक है, तो अगर मेरी उस फोटो में 9 शक्लें दिख रही हैं एंड आई कैन काउंट द नंबर ऑफ यूनिक फेसेस इन द इमेज, तो दैट इज 9 स्टूडेंट्स इन दिस केस. तो वो फेस डिटेक्शन प्रॉब्लम है कि मैंने डिटेक्ट करा है कितने जने हैं. एंड देन इफ आई वांट टू आल्सो राइट द नेम्स, आई वांट टू प्रिंट द नेम्स ऑफ द पर्सन कि कितने कौन कौन है उस फोटो में, तो हम एक एक बंदे को रिकॉग्नाइज करेंगे द सेम वे फेसबुक डज. वहां पे आपको जब आपने टैग करना होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे बहुत सारे नेम्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है कि फर्स्ट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू अस, जो फर्स्ट नेम है दिस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि ये वाला बंदे का नाम फर्स्ट वाला है. अगर ये नहीं है तो हो सकता है सेकंड हो या थर्ड हो, मतलब जनरली 1 2 3 में नाम मिल जाता है. तो उनका जो मॉडल ट्रेन हो रखा है वो हमें 10 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से चूज करने को दे रहा है, राइट. तो उन्होंने सिर्फ एक नहीं, उन्होंने एक एरे ऑफ नेम्स दे दिया अलग अलग लोगों का कि हमारे हिसाब से इसका नाम ये है. तो हम ये सब भी करेंगे. ठीक है, वी विल ट्राई कि आपको मैं मे बी असाइनमेंट दूं या कुछ दूं, बट वी विल ट्राई टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ थिंग आल्सो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड देन क्लस्टरिंग, we will be discussing clustering and we will be discussing different methods, partition, hierarchical. अभी के लिए आपके लिए कीवर्ड्स हैं, बट क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन में डिफरेंस ये है कि क्लासिफिकेशन में तो हम एक एक फोटो को प्रोसेस करते हैं और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ मॉडल लगा के उसकी प्रेडिक्शन करते हैं. बट क्लस्टरिंग में हम ये करते हैं कि लेट्स से आपके पास क्लासरूम है, तो मे बी एक लेट्स से थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, तो मे बी 1980s 90s का, तो एक साइड पे सिर्फ बॉयज बैठे हैं, ठीक है, और एक साइड पे सिर्फ गर्ल्स बैठी हैं. तो मतलब पहले ऐसे होता था कि बॉयज एक साइड बैठे हैं और गर्ल्स एक साइड बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लस्टर गर्ल्स का है और ये वाला क्लस्टर बॉयज का है. सेम गोज फॉर द हॉस्टल्स ऑल्सो. अगर आप जैसे हॉस्टल में होते हो तो हर फ्लोर पे मल्टीपल क्लस्टर होते हैं, जैसे 8 कमरे हैं तो वो 8 रूम्स का एक क्लस्टर है. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम क्लस्टर बोलते हैं. देन एसोसिएशन रूल माइनिंग, तो इसमें हम रिकमेंडेशन देखेंगे कि वो कैसे एसोसिएशन रूलिंग, मतलब इसका एग्जांपल है नेटफ्लिक्स. let's say that you are doing some shopping on Amazon or maybe you are watching some TV series. ठीक है, तो वहां पे वो रूल्स मैच होते हैं कि मतलब कौन से वाला किसके ज्यादा पास है, किसका डिस्टेंस, मतलब सिमिलरिटी बेसिस पे, दैट इफ आई हैव वॉच्ड लेट्स से ग्रेज एनाटॉमी देन आई वुड आल्सो लाइक मे बी गुड डॉक्टर. ठीक है, तो ऐसे कुछ करके टीवी सीरीज की आपस में डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि अगर बंदा एक ये देख रहा तो सेकंड वाला ये भी वो देख सकता है, देयर इज सम सिमिलरिटी. तो वो सब एसोसिएशन रूल माइनिंग में आएगा. ANN इज पार्ट ऑफ डीप लर्निंग. तो एक बेसिक सा हम ANN डिजाइन करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड हाउ डज दीज थिंग्स इन न्यूरल नेटवर्क वर्क. एंड एक्टिवेशन फंक्शंस आल्सो देयर आर मेनी, बट 4-5 थोड़े जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पढ़ाऊंगा डिटेल में. and then we will be finally discussing about the genetic algorithm. So this is the full syllabus जो हमें lectures में cover करना है. And if I have received the information that this semester will run till December, so हम ये assume कर सकते हैं maybe अक्टूबर में suppose MSc होता है या जो भी, कोशिश करेंगे that we will try to complete till classification. ठीक है, और मतलब MSc से पहले पहले पूरा क्लासिफिकेशन तक का सिलेबस खत्म कर देंगे और MSc के बाद हम ये सब कवर करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये वाले छोटे हैं एंड वाले. इनिशियली जो हमारे 3 यूनिट हैं, इंट्रोडक्शन, डाटा प्रीप्रोसेसिंग एंड देन क्लासिफिकेशन, एंड ऑल्सो इसमें कुछ रिग्रेशन का भी था, एक बेसिक सा रिग्रेशन भी होगा. इसमें मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे, बट लीनियर रिग्रेशन एंड इट्स डिटेल, वो डिटेल मैनर में हम लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ेंगे. रिग्रेशन भी समझ में आना जरूरी है, तभी हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ में आएगा. So let's begin. Now, how much time is left? We have 20 minutes. Okay. Now, machine learning, as you can see that the machine learning techniques are widely used nowadays in the number of applications. कुछ भी आप उठा के देख लो, Facebook, Twitter, Instagram, कुछ भी है उसमें रिकमेंडेशन आता है, हमें फोटो टैगिंग भी आ रहा है, एंड वी कैन ऑल्सो सी द कस्टम फीड. रिकमेंडेशन आ जाता है कि आपने कुछ लाइक करा तो उसके जैसा कुछ और भी शो होना शुरू हो जाता है एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड देन वी कैन ऑल्सो
वी ऑल्सो सी दैट इन आवर जीमेल ऑटोमेटिकली हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है, स्पैम में चले जाता है, कोई भी अगर कोई ढंग का ईमेल नहीं आ रहा तो वो स्पैम फोल्डर में मिलता है हमें, ठीक है। तो जो स्पैम है या नहीं है, स्पैम और नॉन स्पैम, इट इज ऑल्सो मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। अगर किसी ने डिजाइन करना है तो यू आर ओपन टू डू दैट एंड डिस्कस इट विद मी इफ यू वांट टू मेक दैट प्रोजेक्ट फॉर योर resume. Now that you are in third year, there will be internship opportunities also. तो आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा. तो this subject is a gold mine for those who want to make 2-3 projects into your resume placement point of view से, ठीक है. तो fourth point is that whatever customization is there, customization का मतलब है that let's say I'm watching Netflix, तो मैं वही बोलूंगा कि let's say that I'm fan of someone. अगर हम एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मैंने उसका टीवी सीरीज देखा है तो वहां पे आ जाता है कि यू कैन ऑल्सो वॉच दिस, मे बी सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम एक्टर, मे बी द प्लॉट. तो रिकमेंडेशंस आते हैं, है ना, हर जगह आते हैं. यूट्यूब पे भी अगर आप लेट्स से यू हैव डन योर 12th 3 years back, right, in 2018, तो 2019, तो अगर आप उन दिनों के कुछ मूवीज का एक भी गाना चलाओगे तो आप देखोगे साइड पे रिकमेंडेशन में आपको उसके आसपास वाली जो मूवीज रिलीज हुई थी उनके गाने ही दिखते हैं, है ना. मतलब ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है दैट इफ आई गो एंड लिसन टू अराउंड 2005 और 2000s के सॉन्ग, अगर मैं एक भी चलाता हूँ तो साइड पे रिकमेंडेशन उसके आसपास की मूवीज के या उसी मूवी के आने शुरू हो जाते हैं. तो वो रिकमेंडेशन जो आ रहा है, इट इज ऑल्सो मशीन लर्निंग रिकमेंडेशन. सर्च इंजन रैंक पेजेस. अब everyone knows that whenever you search anything on Google, वहां पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स में भी बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स. तो उसकी रैंकिंग होती है कि कौन से वाला मे बी उसने गूगल ऐड करा हुआ है किसी भी मे बी कंपनी ने, रेस्टोरेंट ने, तो उसका तो टॉप पे आएगा ही आएगा. एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 डिफरेंट लिंक्स आने शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो रैंकिंग जो हो रही है वो कुछ बेसिस पे हो रही है कि लोग किसको क्लिक कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग क्या आ रही है, क्या उसमें अच्छा कंटेंट है, नहीं है, उसकी कुछ रेटिंग हो रखी हो सकता है उसको किसी ने, उस पेज को किसी ने स्पैम के लिए रिपोर्ट किया हो. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो सब भी बैक एंड पे मशीन लर्निंग समझ रही है और उसमें इम्प्रूव कर रही है. नाउ व्हाई मशीन लर्निंग इज सो प्रिवेलेंट? मशीन लर्निंग ग्रू आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन माइंड. ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है, बट वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द बोरिंग स्टफ दैट ह्यूमंस डू, जिसमें कुछ पैटर्न होता है, वो मशीन लर्निंग इजीली कर लेती है, बट थिंकिंग नहीं अभी कर सकती. अगर आप बोलो कि मशीन लर्निंग से हम थिंकिंग करवाएं किसी चीज की, तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट आर ओनली एप्लीकेबल टू ह्यूमंस फॉर नाउ. ह्यूमंस के पास इमोशंस हैं, तो मशीन लर्निंग के पास अभी इमोशन वो रिकॉग्नाइज जरूर कर सकता है, बट दे कैन नॉट फील द थिंग्स राइट नाउ. अभी मशीन लर्निंग उस स्टेज पे नहीं आया है, राइट. एंड in fact I would recommend you, अगर कोई इंटरेस्टेड है, मेरी एक फिलोसफी है दैट whenever you watch TV सीरीज, आजकल हर कोई देखता है, इवन आई हैव सीन मेनी ड्यूरिंग माय PhD, आजकल भी देखता हूँ, ठीक है. हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर लोग बहुत देखते हैं, राइट. इंजीनियर्स तो इस चीज में है ही है कि मतलब हमने टीवी सीरीज तो देखनी है, विदाउट टीवी सीरीज इंजीनियरिंग पूरी नहीं होती. तो मेरा ये मानना है कि हर टीवी सीरीज में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम ऑटोमेट के लिए हम एक ना एक आइडिया ले सकते हैं उससे, ठीक है. इट कैन बी एनीथिंग. अगर कोई शर्लॉक का फैन है, मे बी शर्लॉक में जो डिडक्शन हो रही है बेस्ड ऑन द सिनेरियो, जो भी वो जाके सीन एनालाइज करता है, सीन एनालाइजिंग एंड देन समराइजिंग एंड गिविंग द डिडक्शन, तो उसके ऊपर भी विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग नाम का एक फील्ड है डीप लर्निंग में. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट लेट्स से पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ए वेरी, थोड़ा पुराना है, मतलब 5 साल पहले खत्म हो चुका, उसके 5 सीजन थे. आई सॉ इट बिफोर माय PhD. तो उसमें सारा फेस रिकॉग्निशन के ऊपर दिखाया हुआ है. तो मतलब वो टीवी सीरीज से मैं इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया था दैट आई चोज माय PhD टॉपिक एज ए फेस रिकॉग्निशन टॉपिक एंड फेस रिकंस्ट्रक्शन. तो उसमें क्या था दैट उनका प्लॉट था दैट व्हेन दिस 9/11 हैपेंड इन 2001, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने एक ऑटोमेटिक वे निकाला कि हम CCTV लगाएंगे पूरे अमेरिका में एंड वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द पर्सन्स एक्शंस के कोई मर्डर तो नहीं करने जा रहा, मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका ह्यूमन गेट एनालिसिस, वो चल भी कैसे रहा है, उसके पास अगर कुछ है
तो हम उसके ऑब्जेक्ट को भी रिकॉग्नाइज कर पाए, मतलब उस टीवी सीरीज में ऐसा दिखाया है। वो मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, एंड आई फाउंड द एप्लीकेशन ऑल्सो, कि मतलब मैंने उसको पीएचडी टॉपिक ही बना लिया। And after that, now we can see that new capabilities are there for computers. Obviously, इंडस्ट्री कोई भी उठा के देख लो, यू कैन सी ऑनलाइन, कोई भी आप ब्रांच डाल लो, इलेक्ट्रिकल में भी एआई घुस चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एआई घुस चुका है, कंप्यूटर साइंस में तो है ही है, इनफैक्ट मैकेनिकल में भी। मोस्ट ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए आपको C++ तो आनी ही चाहिए, एआई भी आना चाहिए, बट फिजिक्स भी आनी चाहिए, बिकॉज यू आर ड्राइविंग द कार, तो आपको फिजिक्स लॉज भी समझ में आने चाहिए। तो बहुत कुछ मिक्स हो चुका है, राइट। एंड includes a set of algorithms that mimic the learning process of human brain. जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स टॉक अबाउट, एंड न्यूरल नेटवर्क्स इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग दैट हमें ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करना है, क्योंकि हम भी तो ऐसे ही करते हैं। मतलब इफ someone has watched that documentary on small infants, तो मैंने एक बार देखा था, शायद डिस्कवरी पे आया था, उन्होंने बोला कि जो एक छोटा बच्चा होता है जो अभी बर्थ हुआ है, जिसका वो 2-4 दिन का, लेट्स से अप टू 1 मंथ, तो उसको ना कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता, उसको कलर दिखते हैं सिर्फ इनिशियली जब वो कहीं पे देखता है। तो तभी आपने नोटिस किया होगा दैट मोस्ट ऑफ द स्मॉल इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके पास हर कोई जा जाके बहुत पास जाके उसको उससे बात करता है, कि मतलब वो उसको देखे, उसके लिए रिएक्ट करे, और या फिर हम उसको प्यार भी दे रहे हैं बच्चे को। तो ऐसा होता है कि बच्चे को जब तक हम बहुत ज्यादा पास नहीं आ जाते, उसको कुछ भी दिखता नहीं है। छोटे बच्चे का मतलब डेवलप ही नहीं हो रखा होता विजन सिस्टम। अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, प्लीज डू इट, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इनिशियली हम कलर्स देखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम एजेस पे आते हैं। अगर अब देखो छोटे बच्चे का लर्निंग प्रोसेस देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपको पक्का पता होगा हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं कि दिस इज ए बॉल, दिस इज एप्पल, दिस इज टायर, है ना। मतलब चलो टायर तो बहुत बात की बात है, बट सर्कल, स्क्वायर, मतलब शेप्स के ऊपर बात होती है। तो इफ यू लुक इनटू द प्रोसेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स ऑल्सो, अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे, अगर कोई जाता है आप में से, यू विल अंडरस्टैंड जब हमारा मॉडल लर्न कर रहा है, लेट्स से देयर आर 10 लेयर्स, मतलब उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं न्यूरॉन्स का ना, ऐसे करके एरे होता है, एक एरे न्यूरॉन्स का ये डाला, ऐसे करके सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, वो जितना मर्जी लेके जा सकते हैं। जनरली दे से 2 और मोर लेयर्स मतलब डीप लर्निंग, ठीक है। सिंगल लेयर को हम डीप लर्निंग नहीं बोलते, उसको हम शैलो लर्निंग बोलते हैं, शैलो मॉडल बोलते हैं उसके। बट डीप लर्निंग मॉडल 2 और मोर लेयर्स ऑफ दैट एरे ऑफ न्यूरॉन्स। तो वो जितना गहरा हम जाएंगे, और अगर हम उसको अगर हम मॉडल ट्रेन भी कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रेनिंग लेट्स से फेस रिकॉग्निशन मॉडल, हम उसको समझेंगे और देखेंगे कि यार ये इनिशियली सबसे पहले कलर के ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर बनेगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट या कोई भी और कलर, उसके बाद उसमें एजेस बनने शुरू हो जाएंगे। अब एजेस के बाद बनते हैं शेप्स। मतलब देखो लाइन का, अगर बच्चे को लाइन पता है तभी वो कुछ स्क्वायर पे जाएगा ना, जब तक उसको लाइन ही नहीं पता क्या होती है, रेक्टेंगल या स्क्वायर कैसे बना लेगा वो। तो पहले एजेस आते हैं, फिर शेप आती है, उसके बाद डिटेल में आता है कि उसमें 2 आईज हैं, एक नोज है। एंड यही चीज हमने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में भी करी है। इफ यू ओपन यूट्यूब टुडे एंड इफ यू सर्च अबाउट वेरी बेसिक लेक्चर अबाउट डीप लर्निंग, अगर आप जाके पढ़ोगे उसको, तो बहुत एक फेमस प्रॉब्लम है कैट्स वर्सेस डॉग्स। मतलब इट इज वेरी वेरी कॉमन इन डीप लर्निंग वर्ल्ड। तो वो क्या करते हैं, कैट्स और डॉग्स का क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है। इट इज ए बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। उसमें हजारों तरह के डॉग्स हैं, हजारों तरह की कैट्स हैं, अलग अलग ब्रीड्स हैं। तो उन्होंने मॉडल ट्रेन किया, and they found that human accuracy is around 97%, 96%. Humans does some error in this, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता है, मतलब हमें हर ब्रीड तो नहीं पता, राइट। तो उन्होंने क्या किया, सम एक्सपर्ट्स लिए, और उन एक्सपर्ट्स के बेसिस पे उन्होंने उनसे लेट्स से 100 इमेजेस को क्लासिफाई करवाया दैट ये डॉग है या कैट है, मतलब 1 और 2, मे बी 0 और 1, बस बटन दबाना है कि ये 0 है या 1 है, या टिक लगाना है, कैट और डॉग। तो उन्होंने देखा एवरेज एक्यूरेसी केम अराउंड 96.5%, 97%। बट जब उन्होंने मॉडल ट्रेन करना शुरू किया, इट वाज इन 2010 में ये चैलेंज शुरू हुआ था, 2010 में। 2011 तक मैक्सिमम एक्यूरेसी आ रही थी मॉडल की, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल तो अभी आया नहीं था, मशीन लर्निंग मॉडल ही था अभी 2011 तक। तो उन्होंने मैक्सिमम एक्यूरेसी निकाली थी 74%, एंड देन केम 74 था, पता नहीं 73 था, इतना परसेंट एक्यूरेसी आ रहा था उनका टू डिटेक्ट
ह्यूमंस का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा था, 96% था. एंड देन 2012 में वन ऑफ द रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो who was working under Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton बहुत famous नाम है. If you want to search about it, you can search. But Geoffrey Hinton is called the godfather of AI. उन्होंने जितना भी AI, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग आया है आज तक पिछले 40 साल में, 35 years तो मुझे पता है that he has been working on this field. उनकी एज काफी बड़ी है, 80, 71, 72 में भी, इतनी एज तो उनकी होगी, मे बी 75 के हों. तो वो 35 साल से इस फील्ड में हैं. दे हैव गिवन सो मच ऑफ रिसर्च एंड so much of discoveries in this field. वो एलेक्स नाम का लड़का था, he was working under that person जो जीनियस गॉडफादर ऑफ एआई माना जाता है. तो उन्होंने डीप लर्निंग मॉडल एक बनाया एंड दैट एक्यूरेसी वेंट टू 85%. मतलब विद इन 1 year, मतलब उससे पहले भी चल रहा था, उससे पहले उसका एक छोटा लेवल था कंपटीशन का, एक्यूरेसी कभी 74 से क्रॉस नहीं हुआ था किसी का. इट वाज लाइक किसी का 69 आया, 70 आया, 71 आया, 1% करके बढ़ रहा था हर साल. बट वो भाई साहब ने, एलेक्स ने क्या किया, एलेक्स गॉट द एक्यूरेसी ऑफ 84-85%, सीधा 10-11% का जंप मिल गया यूजिंग डीप लर्निंग. एंड देन दिस बूम ऑफ डीप लर्निंग स्टार्टेड इन 2012. 2012 में आया था. तो दैट वाज एक्चुअली द प्रूफ के ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया. अब जो जॉफ्री हिंटन सर थे, उन्होंने क्या कर रहे थे, वो दे वर वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 1986. 1986 में उनका फर्स्ट पेपर आया था ऑन बैक प्रोपेगेशन. बैक प्रोपेगेशन इज अगेन अ कीवर्ड इन द फील्ड ऑफ डीप लर्निंग. आप लिखते जाओ, अगर आपको लिखना है, यू कैन राइट द कीवर्ड आल्सो. तो आप बाद में सर्च करते रहना, और सिखाऊंगा भी. बट या आई मीन आई मे बी राइट नाउ किसी को नहीं पता ये वाले टर्म्स, सो आई मे बी साउंडिंग लाइक कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो इन सर का समझ नहीं आ रहा, सर क्या बोल रहे हैं. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू कैन राइट द कीवर्ड्स. तो he was working बहुत सालों से, बट रिजल्ट नहीं आ रहे थे. सिंपल रीजन वाज डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए. जब आप बहुत सारे न्यूरॉन लगा रहे हो, न्यूरॉन्स के ऊपर न्यूरॉन लगा रहे हो, तो मैथमेटिकली बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं उसमें, बहुत ज्यादा इक्वेशंस आ रही हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं प्रोसेस करने के लिए. फॉर दैट प्रोसेसिंग जीपीयू स्टार्टेड हेल्पिंग. जीपीयू आया कब? इफ एनीवन नोज, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आई विल गिव यू 10 seconds. When did this first GPU came by NVIDIA? NVIDIA ने कब लॉन्च किया था? एनीवन? NVIDIA ने in 2008 फर्स्ट GPU लॉन्च किया था फॉर द पर्पस ऑफ गेमिंग. अब जो गेम खेलते हैं उनको पता है कि गेमिंग लैपटॉप्स अगर लेने हो तो हमें GPU मिलता है साथ में, और अच्छी हम अच्छी गेम्स खेलते हैं. मोस्ट ऑफ यू माइट हैव प्लेड मेनी गेम्स. मैंने भी कुछ खेली हैं, बट नॉट ऑन GPU. मैं तो पहले छोड़ चुका काफी. तो बट GPU बहुत हेल्प करता है. कुछ नेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, मे बी PUBG, तो ये सब के लिए GPU चाहिए. थोड़ा हैवी ड्यूटी गेम्स हैं ये, ठीक है. तो GPU जब आया तो फॉर दिस रिसर्चर्स दिस मशीन हेल्प्ड अ लॉट इन डूइंग द प्रोसेसिंग, जो अभी तक CPU का काम का, मतलब CPU के बस का नहीं था. CPU कुड नॉट हैंडल बिलियंस ऑफ वैल्यूज. अगर आप एक सिंपल सी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यू आर सीइंग द स्क्रीन, ठीक है. इसका रेजोल्यूशन कितना है? मे बी 1080 into 720, ऐसा कुछ इसका रेजोल्यूशन होगा. तो मल्टीप्लाई कर लो, कितने पिक्सल्स हो गए, राइट. और इतनी वैल्यूज को अगर हम ओवर टाइम, अब क्योंकि ये वीडियो चल रही है, वीडियो में क्या होता है, 24 frames per second हम स्टैंडर्ड मानते हैं. 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना HD है. तो हम स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं 24 frames per second. 24 frames per second का मतलब ये है, पहली बात तो ये कलर्ड है. अब कलर्ड वाली जो चीज होती है उसमें एक RGB नाम की एक लेयर होती है. यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन इमेज प्रोसेसिंग. थोड़ा सा आइडिया होगा आपको. हैव यू पीपल स्टडीड इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट और मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू इट जिसमें RGB लेयर आपने पढ़ा हो? एनीवन? यस और नो? नो सर. नो. एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ. कलर्ड इमेज में 3 लेयर होते हैं, RGB. अब अगर मैंने बोला कि यार ये 1080 × 720 की इमेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 1020 और 720 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे काम हो गया. इसका मतलब है into 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेड कलर की लेयर है, देन द ब्लू, देन ग्रीन. तो into 3 भी करो. तो मतलब वैल्यूज कितने हो गए जस्ट फॉर वन इमेज? 1080 × 720 into 3. अब इसी चीज को अगर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 फ्रेम्स, मतलब 24 इमेजेस को हमने ऐसे ब्रेड के स्लाइस की तरह चिपका दिए साथ में. और इसको हम बोल रहे हैं कि 1 by 1 अगर हम जा रहे हैं, एक सेकंड में वी आर कवरिंग 24 इमेजेस, तब वो वीडियो कहलाती है. तो जस्ट इमेजिन द
वैल्यूज के कितने पिक्सल्स हमें प्रोसेस करने पड़ रहे हैं। 1080 into 720 into 3 into 24, ये तो सिर्फ 1 सेकंड का है। अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो तो कितने सारे वैल्यूज हो गए अगर आपको कल को वीडियो के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। तो ये हमें जीपीयू ने हेल्प करी, दैट जीपीयू इज सो मच कैपेबल कि वो इतने सारे वैल्यूज को फटाक से काम खत्म कर देता है, राइट। तो जीपीयू के अंदर CUDA कोर्स नाम की एक चीज होती है। अब आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट आई कैन ओनली गिव यू वन एग्जांपल। अब इनिशियली अब जब मैंने ये लैपटॉप लिया था इन 2016, माय लैपटॉप हैड दिस मतलब 4 GB का जीपीयू है इसमें, बट इट हैज ओनली 384 CUDA कोर। इसका मैं मॉडल नंबर भूल गया, मे बी MX940 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ था। तो इसमें मेरे पास 384 CUDA कोर्स थे। CUDA कोर्स जीपीयू का कोर सिस्टम है, जैसे हमारा सीपीयू होता है डुअल कोर, क्वाड कोर आपने सुना होगा, मोबाइल्स में भी होता है, ठीक है। क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है मोबाइल्स में, तो वो कोर्स होते हैं, वो सीपीयू होता है। बट जीपीयू के CUDA कोर होते हैं। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हो, यू कैन गो टू एनवीडिया वेबसाइट। एनवीडिया पे पता नहीं कितने ही तरह के जीपीयूज हैं। एंड मेरा काम नहीं चल रहा था इन माय पीएचडी, सो व्हाट आई डिड, आई बॉट दिस एनवीडिया का 1080 Ti, एनवीडिया GTX 1080 Ti। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे आज की डेट में मे बी इट इज अराउंड 80-90,000 रुपीज। तब मेरे को थोड़ा सस्ता मिल गया था 5 साल पहले। बट जैसे जैसे ये चीज आगे गई तो इसमें बहुत ज्यादा महंगाई भी आई, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग डीप लर्निंग नाउ। बट इनिशियली मुझे ठीक रेट पे मिल गया था 5 साल पहले, 5 तो नहीं बट अराउंड 3-4 years बैक आई बॉट इट। तो उसमें मेरे को मिले CUDA कोर्स 3584, इफ यू कैन सर्च अबाउट इट। आपको इतना ही मिलेगा, मेरे को याद है, बिकॉज आई हैव बॉट इट, आई हैव स्पेंट सो मच मनी इन दैट। I can tell you that it has 3584 CUDA cores. It is a 11 GB GPU. मतलब मेरे लैपटॉप में 4 GB है, बट मेरे डेस्कटॉप पीसी में 3584 CUDA cores हैं, compared to my CPU which is only dual core और quad core। मेरे को ये भी नहीं याद लैपटॉप में कितना है। बट this is the difference between the processing of CPU versus GPU। अब CUDA core versus 1 core of CPU में मत जाना। अगर जाना है तो जाओ, आपकी फील्ड है। आप अगर आप उतनी डिटेल में हार्डवेयर में जाना चाहते हो तो हार्डवेयर पढ़ो, बट इट विल नॉट सर्व एज मच। बस पता होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करा जीपीयू ने, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। टेक्निकली मशीन लर्निंग को होता क्या है ये देखते हैं। मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स द कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ये आर्थर सैमुअल नाम का एक बंदा था, इसने 1959 में, आप गिन लो कितने साल हो गए, 21 and 41, 62 years पहले ये डेफिनेशन आ चुकी थी मार्केट में, ठीक है। आर्थर सैमुअल ने ये डेफिनेशन पब्लिश कर दी थी। इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड? ये क्या होता है, एनीवन? जिसे हमने खुद प्रोग्राम किया हो हाथ से शायद। हाँ, एग्जांपल है। आई एम नाउ, टाइम हो गया 6:50 हो गए हैं, आई एम एंडिंग द सेशन। मैं बस इतना बता देता हूँ, जैसे आप फिबोनाची या प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते थे, तो उसमें क्या होता था दैट यू वर राइटिंग द एक्चुअल कोड, कि मतलब ये आएगा तो ये होगा, ये आएगा तो ये होगा, इफ एल्स वगैरह लगा के, फॉर लूप लगा के। तो वो हार्ड प्रोग्रामिंग थी, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग कर रहे थे। बट लेट्स से आपको फेस रिकॉग्नाइज करना है, तो फेस रिकॉग्निशन का कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते। ये नहीं लिख सकते कि ऐसे करके पिक्सल आएगा तभी वो, मतलब उसका नाम ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग आई, एंड वी विल डिस्कस इन continuation to this in the Monday lecture. Now I'm ending the session, and I hope you people have got the link of the website, ठीक है। And if you want to contact me, you can email me, you can see the Thapar website and you can contact me in my email. I will give you the details. सर आपका रूम नंबर बता देंगे, मतलब आप कहाँ बैठते हैं? Yeah, we will discuss that. अभी तो नहीं, but I will let you know if the need will be. अभी के लिए आप पढ़ना शुरू करो। You have got the syllabus, you have got the website. I will let you know my room number also later on. Okay.